Hello everyone. So today's day 3 for our, so we are going to study like the third chapter today for science, which is our force and pressure. Before starting any chapter, again we should know what actually we are going to learn in this chapter. So that is basically what we should know is topic of the chapter. Basically the topic of the chapter here is force and pressure. Now we all are in 8th standard and eventually will be in 9th and 10th, and this is like the basics of physics which we should be knowing. If 8th is good, 9th and 10th is maska, believe me guys. So when I say this, so today we'll try to learn like the basic concepts of physics, which eventually will be helpful in your next classes. And I would like to brush up on everything, like new things. So I really want you to be very serious when you're talking about all this. So when we talk about force, like the force, okay, so what is really force is? So you have to understand force is nothing but like it's just like push or pull. Whatever do you like push and pull that door, you remember? Force is nothing but that. Like I'm pushing you, bro, I'm pulling you, bro, that's force. Okay. And what is the pressure? It is nothing but like how much force, bro? How much force on how much area? you know like if I'm putting how much force I'm putting on how much area, that is actually pressure. Like to keep it simple for the start, but I have written like pre-written notes like what all things are actually here in this chapter which you should be knowing before diving deep into the chapter. Okay, so we'll go through that first and then we'll go to the chapter. Okay, let's get started. Okay, to start with, let's talk about force for some time. So I told you force is nothing but like the push and the pull, right? So you're pushing or you're pulling, whatever. So it's the basically that. Okay. So what is important is force can do what? Like when is it like we are saying force? So force basically like it's like this pen is moving at a particular speed like this. Okay, and if I'm putting a force which is like an external thing, which is very important, okay, external thing, and it is changing the speed. Okay, like this is the pen is moving like this, and I just give it a push and then the speed increased, right? So in that case the object का स्पीड इंक्रीज्ड. ओके, फिर से आते हैं. तो बेसिकली ये पेन ऐसे आराम से भाई मूव कर रहा था, जैसे तुम जाते हो स्कूल में जाते हो, तुम्हारी स्पीड ऐसी होती है, फिर तुम्हारी मम्मी आती है. बेसिकली अभी तुम जा रहे हो स्कूल को, ये तुम्हारी चाल है, फिर तुम्हारी मम्मी आती है, तुमको ऐसे चाल रहे, तुम्हारी से चल रही है और तुम्हारी मम्मी तुमको धक्का देती है, तो तुम्हारी क्या हो गई, स्पीड चेंज हो गई, राइट. तुम ऐसे तुम्हारी आंखें बंद है और तुम्हारे दरवाजा आने वाला है, टकराने वाले हो, तुमको मम्मी इधर धक्का देती है. ओके, तो ये तुम्हारा हो गया स्पीड, तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो गया. ओके, कभी कभी तुम्हारे मुंह पे मम्मी तमाचा लगा देती है क्योंकि तुम सही से सुन रहे नहीं हो, तो तुम्हारे क्या हो गया, गाल के जो शेप चेंज हो जाएगी वो. तो बेसिकली व्हाट योर मॉम डिड इन एवरी केस वाज पुश, राइट. समटाइम्स शी विल पुल यू ऑल्सो, राइट. लेकिन ये सब सारी सिचुएशन में क्या हो रही है, तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है और शेप चेंज हो रहा है. तो फोर्स वही है, ओके, जो बेसिकली एक पुश और पुल होता है, जो ये तीनों चीज़ें चेंज करने की ताकत रखता है. That is force. Simple, keep it simple. Every concept in physics you should keep it simple as much as possible. Okay, now let's talk about pressure. Like there is a deep thing in your chapter which we'll be like talking later on. But pressure क्या होता है? तो basically कितना force कितने एरिया पे काम कर रहा है, इट्स प्रेशर. सो बेसिकली इफ आई एम पुटिंग फोर्स, कुछ तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ओके, इतने से एरिया पे लग रहा है, तो कितना प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है कितने एरिया पे, उसको बोलते हैं प्रेशर. ओके, समझ रहे हो. फिर बाद में तुम्हारे बुक में है मतलब व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट है मतलब कुछ तो मतलब टच हो रहा है या फिर दिख रहा है तुमको कि इसके वजह से ये फोर्स लग रहा है. जैसे मम्मी ने तुमको मारा तो तुम्हारे गालों पे लगा तमाचा, राइट. तो ये दिख रहा है कि कांटेक्ट हुआ है तभी ये फोर्स काम कर रहा है, राइट. लेकिन कोई कोई चीज़ है जो बिना कांटेक्ट मतलब बिना टच के भी फोर्स लगाती है. जैसे अभी मेरा पेन है, अभी ये पेन है तो ये गिरेगी नीचे ही. तुमने देखा किसने खींचा उसको, किसने मारा धक्का, किसी ने पुश किया पुल किया, नो, बट स्टिल इट मूव्ड, राइट. तो ये बेसिकली ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है विच इज़ योर ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, मतलब मैं तुमको बोल रही हूँ कि ये सिंपल है, जैसे नाम से समझ में आना चाहिए तुमको कि क्या होता है करके. ओके, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स. सो क्या हो गया, अभी मैं यहाँ से फोर्स लगा रही हूँ और सेम फोर्स यहीं पे लग रहा है. ओके, सेम फोर्स इस तरफ से भी लग रहा है यहाँ पे,
तुमको क्या लगता है पेन मूव करेगी? ये इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ मैं, इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ, पेन मूव करेगा नहीं, क्योंकि जो फोर्स है बैलेंस हो गया, मतलब ये अलग डायरेक्शन में होने की वजह से, अलग डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल, और वो पेन वहीं का वहीं रुका रहेगा। तो बेसिकली, और अनबैलेंस फोर्स है तो वो यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है, ओके, तो ये पेन मूव करेगा। तो ये सब चीज़ें जो करवानी है ना हमको, स्पीड चेंज करवानी है, डायरेक्शन चेंज करवानी है, शेप चेंज कराना है, तो इसके लिए हमको बैलेंस फोर्स नहीं, हमको अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत होती है। समझ रहे हो तुम? ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक, इसको सिंपल तरीके से याद रखो, ज़्यादा प्रेशर मत लो दिमाग पे, ज़्यादा फोर्स ना डालो दिमाग पे। समझ रहे हो तुम? नहीं तो हेडेक हो जाएगा। ओके, हेडेक इज़ ऑल्सो नथिंग बट प्रेशर, बाय द वे। ओके, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। और जो बात की गई है वो क्या है, वो बायोएंट फोर्स के बारे में बात की गई है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली बायोएंट फोर्स क्या होता है? ओके, तो बेसिकली क्या होता है बायोएंट? इट्स बेसिकली तैराता है जो तुमको, वो फोर्स जो तुमको ऊपर की तरफ डालता है। तुमने कभी देखा है, तुमने टब लिया है करके, पानी में भरा हुआ टब है, ओके, उसमें पानी भरा हुआ है, जाके उसको थप्पड़ लगाना ज़ोर से। अरे स्विमिंग पूल में कभी जंप किया है आपने? तो बेसिकली तो तुम क्या करोगे, तुम जैसे थप्पड़ लगाओगे ना, पैर से हाथ डालोगे अंदर, वो अपने आप पानी तुमको ऊपर 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 फेंक देगा। ओके, ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है और तुमको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, बेसिकली फोर्स इज नथिंग बट पुश, राइट? तो दैट वाटर विच पुशेस यू अपवर्ड्स, ओके, वो अंदर नहीं जाने बोलता तुमको, ऊपर ऊपर जाने बोलता है। तो दैट फोर्स इज नथिंग बट अ बायोएंट फोर्स। तो याद रखो, ये तैराने वाला फोर्स बेसिकली बायोएंट फोर्स। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये, मतलब बेसिकली वो बायोएंट फोर्स के बारे में ही बात करता है कि हर चीज़ जो है वो नीचे जाएगी, मतलब पानी में जाएगी, वो पानी उसको ऊपर धकेलेगा। तो सेम थिंग, we will be discussing this in detail with the theory part as well, so that you can write answers for the same. ओके, फिर बात आती है, मतलब मैं बोल रही हूँ तुमको, सारी जो चीज़ें हो रही है डिस्कस हो रही है, समझ लो कि ये चीज़ है तुम्हारे पूरे टेक्स्ट बुक में, पूरे चैप्टर्स में। तो मैं तुमको ओवरव्यू दे रही हूँ, तो वैसे ही याद रखो। फिर इनर्शिया की बात आती है। इनर्शिया मतलब सुबह उठा दो तुमको, तुम सोए हुए हो, ओके, तुम सोए हुए हो, जब तक तुमको बाहर से आकर कोई रोक, मतलब उठाता नहीं, तो तुम जगह से मूव नहीं करोगे, बराबर है? तो ये तुम्हारा जो ये इनर्शिया है, ये क्यों होता है ऐसा? इनर्शिया होता है मतलब जो एक ऑब्जेक्ट अगर किसी स्टेट में है, ओके, या तो वो एक ही जगह रुका हुआ है, या तो फिर एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, बिल्कुल स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, ओके, या फिर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, वॉटेवर, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो वहीं रहे। ओके, जैसे हम होते हैं, मतलब सुबह उठा लो तो हम चाहते हैं नहीं भाई हम बिस्तर पे ही पड़े रहें, ओके, हम जा रहे होते सेम स्पीड से स्कूल की बस की तरफ, हम चाहते हैं बस वही स्पीड से ही चलें, कोई हम जब तक कोई बाहर से आके हमको हिला ना दे हम नहीं हिलाते। तो ये जो बॉडी, हर एक बॉडी की जो टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं बस उसी तरीके से हम चलना चाहिए, वो जो टेंडेंसी मतलब जो नेचर होता है बॉडी का, उसको बोलते हैं इनर्शिया। समझ रहे हो? प्रेशर के बारे में तो बकवास की हमने, और थोड़ी सी बकवास होगी मतलब बुक में, और लिक्विड्स का कैसा प्रेशर है, गैस का कैसा प्रेशर है, सॉलिड का कैसा प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम की क्या चीज़ होती है, वगैरह वगैरह, इट्स ऑल डिस्कस्ड। फिर बाद में आ जाती है डेंसिटी, जिसके बारे में डिस्कशन की गई है। डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली क्या, कितना घना है, ओके, इट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर हेयर डेंसिटी एंड योर लाइक द बेबीज हेयर डेंसिटी। तुम देखोगे कि तुम्हारे बाल एकदम मतलब इधर थोड़े हैं, इधर थोड़े हैं, इधर थोड़े हैं, बस ऐसे, लेकिन बेबी के हेयर देख लो, आजकल जिनको ज़रूरत नहीं है उनको ज़रूर होगा, एकदम घने होते हैं बाल। तो बेसिकली इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एरिया में जो एरिया होता है उसमें ज़्यादा चीज़ उसमें भरा हुआ रहता है, मतलब कम एरिया में ज़्यादा चीज़ भरी हुई है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ओके, ज़्यादा एरिया में कम चीज़ भरी है उसकी डेंसिटी कम है। मतलब इसको हिंदी में बोल देते हैं घनत्व, कितना घना है, दैट इज़ डेंसिटी। उसको अगर हमको मेजर करना है तो बेसिकली मास, ओके, और वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकालते हैं। मास मतलब कितना मटेरियल है, ओके, मटेरियल मतलब जो भी चीज़ें दुनिया में है, मटेरियल जो जगह लेती है बेसिकली उसको मास कहते हैं। और वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन देखते हैं वॉल्यूम्स का, हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मतलब तीनों चीज़ देखेंगे वो कितना वॉल्यूम है, मतलब कितने जगह में कितना मटेरियल भरा हुआ है, वो उसकी डेंसिटी तय करेगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, ओके। फिर एक बात हुई है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब
जितनी भी चीज़ें, ये पेन ले लो, ये बुक ले लो, मैं ले लूँ, कोई भी ले लो, उसकी डेंसिटी कंपेयर की जाती है वाटर से। ओके तो ऐसे केस में जब हम किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकालते हैं, तो इसका अगर डेंसिटी मुझे निकालना है तो मैं बस निकालूंगी इसका मास कितना है, ओके, और इसका वॉल्यूम कितना है, और मैं डेंसिटी निकाल लूँगी। ओके वो नॉर्मल डेंसिटी हो गई। बट अगर मैं बोलूँगी पेन की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसका, इसका रिलेटिव कौन है, सबका रिलेटिव बेसिकली वाटर है। तो इसका डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, बस वो इसका रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। ओके देन वेरी इंपॉर्टेंट इट इज SI यूनिट and CGS unit. Basically SI unit is like initially it was called as MKS unit and CGS unit तो we know. So basically MK मतलब क्या होता है, M is meter, okay, kg and second. मतलब अगर कोई डिस्टेंस मापनी हो तो मीटर में मापो, डिस्टेंस मापनी है तो मीटर में मापो, ओके, अगर वेट मापना है तो केजी में मापो, और सेकंड अगर टाइम को मापना है तो सेकंड में मापो। ओके मतलब मेजर करो। CGS इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके तो SI यूनिट इज बेसिकली दैट। तो कोई भी SI यूनिट में अगर तुमको बोला आंसर निकालने हैं, मोस्टली सारे आंसर्स जो होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के वो SI यूनिट में निकलते हैं। तो तुम कोई भी यूनिट मतलब कोई भी चीज़ यूनिट में दिया हुआ तुमको नंबर्स, तुमको ये यूनिट में कन्वर्ट करके ही उसको आंसर्स निकालना होता है। विल सी हाउ व्हेन वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स, सो डोंट टेक प्रेशर राइट नाउ। ओके फिर बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, यस, कोई भी फॉर्मूला, जैसे अब ये प्रेशर ले लिया नॉर्मल सा, मैंने बोल दिया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो इसमें क्या होता है कि फोर्स ऊपर है, एरिया नीचे है। ये जो ऐसे लिखा होता है ना फॉर्मूला, कोई भी बना होता है ऐसे, कोई भी फॉर्मूला फॉर दैट मैटर, तो इसका एक मीनिंग होता है। तो ये जो फोर्स ऊपर है इसका मतलब क्या है, ये दोनों भाई हैं जिनमें बहुत अच्छी बनती है। ओके और ये जो नीचे लिखा होता है ना, मतलब इसके उल्टा लिखा होता है नीचे, इसका मतलब ये दोनों भी भाई है बट सौतेली, जिनकी बनती नहीं है। कुछ समझ रहे हो? तो ये जिनकी बनती है वो दोनों सेम काम करेंगे, ओके, और साथ साथ करेंगे, लेकिन जिनकी बनती नहीं है वो उल्टे काम करेंगे। इसका मतलब ये होता है। अभी मैं बता दूँ उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर मैंने बोला P एंड F, इसका अगर सामने सामने तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई डायरेक्ट ब्रदर्स हैं, सेम टू सेम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। ओके ये जो टर्म बोलते हैं वो सब फैंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली। तो व्हेन यू से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगा, या फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा। ओके इसका मतलब ये दोनों जो चीज़ें होंगी ये साथ में बढ़ेगी और साथ में कम होंगी। समझ रहे हो तुम? तो ये प्रेशर बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हुआ तो ये भी कम होगा। ओके इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों चीज़ें साथ में बढ़ती है, दैट्स इजी। और ये उल्टा जो होता है ना, उसमें उल्टा ही होता है, प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। अगर जैसे मैं पेन की निब से मारूँ, ये इतना सा एरिया, ये इतना सा एरिया, तो प्रेशर ज़्यादा ही लगेगा ना। लेकिन अगर मैंने इससे मारा तो इतना प्रेशर नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लग रहा है। ओके एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। कुछ समझ रहे हो तुम? तो ये उल्टा होता है, समझ रहे हो? ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मैटर। सेम डेंसिटी वाले, जैसे डेंसिटी वाले मतलब कोई भी फॉर्मूला मैंने तुमको बताया फॉर दैट मैटर कि ऐसे ही होता है, डेंसिटी मास, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी कम है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ा तो मास बढ़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो रादर देन शोइंग यू, मतलब बेसिक कंसेप्ट तो मैंने तुमको समझा दिया, लाइक ओवरव्यू दे दिया है। ओके मैं नहीं चाहती कि तुम टेक्स्ट बुक खोलो और तुम कंफ्यूज हो जाओ बेसिकली। तो आई वुड लाइक टू शो यू what it really means, and you will open the textbook and you will try to study कि क्या मतलब बेसिकली टेक्स्ट बुक में बोला क्या गया है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू नो दिस राइट। सो बेसिकली जो तुम स्टार्ट करोगे चैप्टर, तो तुम्हारा हो जाएगा कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट रूल दिया गया है बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट इनर्शिया क्या होता है। तो मैंने बोला इनर्शिया तुम्हारा, जो तुम बेड पे सोए हुए हो या जिस रफ्तार से तुम जा रहे हो उसी रफ्तार से तुम रहना चाहते हो, तुम्हारी बेसिक टेंडेंसी है, वो इनर्शिया होता है। इनर्शिया के बारे में न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दिया गया है। ओके दैट्स वो ही लिखा हुआ है। पहली बात तो लिखा है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है जिसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है वो हमेशा स्टेशनरी रहना चाहता है। जो रुका हुआ है वो हमेशा रुका हुआ ही रहना चाहता है अगर फोर्स काम ना करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में मूव कर रहा है उसको हमेशा अपनी स्पीड से मूव करनी है, उसी डायरेक्शन में जानी है अगर उसके ऊपर कोई फोर्स काम ना करे, लाइक जब तक तुमको तुम्हारी मम्मी मारे ना बेसिकली। ओके तो वो है न्यूटन का फर्स्ट मोशन, लॉ ऑफ मोशन।
ओके फिर बाद में तुमको यहाँ पे 3 पिक्चरें दिखाई गई है। कभी भी चैप्टर पढ़ो तो पिक्चरों के हेल्प से पढ़ो। तो ये जो पहले बता रहा है ये तुमको बेसिकली फोर्स क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है पूरे चैप्टर में। तो ये फोर्स दिखा रहा है, तुमको पुश कर रहा है ये बंदा, ये पुल कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये तीनों एक्शन जो है वो क्या है, वो क्या है, फोर्स दिखा रहा है तुमको। इसमें तुमको कांटेक्ट और नो कांटेक्ट फोर्स के बारे में बातें मतलब डिफरेंसेस बताने की कोशिश की गई है। ओके ओके सो बेसिकली अभी तुम चैप्टर देख लो, तुम्हारे चैप्टर में क्या है, तुमको वो बेसिक कंसेप्ट समझ गया। तो अभी हम चैप्टर देख लेंगे क्या है। तो तुमको समझ में आना चाहिए व्हेनेवर यू ओपन द टेक्स्ट बुक कि क्या है रियली बुक में लिखा हुआ। तो मैं तुमको चैप्टर बुक से समझाती हूँ। तो क्या हो रहा है कि पहले जो है ना, पहले पार्ट में तुम जैसे चैप्टर खोलोगे तो लिखा हुआ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो हमने बात की थी कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है अगर उस पर फोर्स ना लगे तो वो एक ही जगह रहना चाहती है। मतलब जो तुम जब सोए हो बेड पे तो बस तुम सोते रहना चाहते हो। अगर कोई मोशन कंटिन्यूस में एक ही मोशन मतलब एक ही स्पीड से जा रही है तो वो एक ही स्पीड में जाना चाहते हैं। जैसे तुम बस की तरफ जा रहे हो, एक ही स्पीड से जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, जब तक तुमको मम्मी थप्पड़ नहीं लगाती तुम दूसरे मोशन में नहीं जाओगे, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के दिया हुआ है। ओके ये इस वाले चैप्टर में मतलब बताया गया। फिर बाद में तुम देख रहे हो ये जो मतलब ये देख रहे हो तुम, ये जो दूसरी चीज़ें दी हुई है, ये 3 पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे 3 पिक्चर दी है, यहाँ पे 3 पिक्चर दी है। तो तुम्हारे नेक्स्ट पार्ट में भी चालू हो गया कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। ओके तो बेसिकली ये दिख रहा है तुमको धक्का मार रहा है, ये पुल कर रहा है, ये भी धक्का मार रहा है। ओके ये तीनों में तुमको दिखा रहा है ये जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली जो लग रही है, ओके इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे मसल का यूज़ हो रहा है, ये मसल का यूज़ हो रहा है, ये भी मसल का यूज़ हो रहा है, मतलब सारे बॉडी के मसल यूज़ हो रहे हैं। मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, वो एग्जाम्पल दिया गया है तुमको। ओके फिर ये नॉन कॉन्टैक्ट भी तुमको वहीं समझा दिया है। ये दिख रहा है मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये कीले रखी हुई हैं। तो भले ही कीले दूर रखी हुई फिर भी मैग्नेट अट्रैक्ट कर देता है। तुमने देखा कहीं पे कि भाई कीलों को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कोई टच भी नहीं कर रहा फिर भी अपने आप अट्रैक्ट हो रही है। ये वाली पता ही होगी एग्जाम्पल तुमको, जिसमें ये क्या ये घिसते हैं वो कंघी लेकर तेल वाले बालों में। ओके और फिर वो मतलब कागज़ों के टुकड़े रखे हुए होते हैं और उस पर वो अट्रैक्ट हो जाती है अपने आप। ओके करते हैं, तो हम लोग तो बहुत कर रहे थे बचपन में। और ये नारियल रहने दो या कोई भी फ्रूट रहने दो या तुम ही रहने दो, तुमको ऊपर चढ़ा दिया जाए, तुम गिरोगे तो नीचे ही। तो ये बेसिकली कौन सा फोर्स हो जाता है, ये हमारा ग्रेविटेशनल पुल हो जाता है। ओके ये भी एक पुल है बट ये मैग्नेटिक फोर्स है, और ये जो है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो तुमको ये सारे फोटोज से ही बहुत सारे फोर्सेस के नाम बता दिए गए हैं और एग्जाम्पल भी समझा दिए गए। दैट इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ इट। तो तुम टेक्स्ट बुक ऐसे रीड करो, मतलब पिक्चर समझो, बाकी तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। पिक्चर याद आ गया ना तो एग्जाम में तुम ठोक ही लोगे, मतलब लिख ही लोगे बेसिकली। दैट्स व्हाट आई मीन यू नो। फिर एक मेंशन हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स का। तो बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज़ नथिंग बट फ्रिक्शन, बट because of friction it is generated. Let's not go there. But what is friction basically? Friction is a force. Okay, friction एक ऐसा फोर्स होता है जो तुमको रोकता है। ओके मतलब तुम यहाँ जाना चाहते हो और तुमको वो वहाँ पुश करता है। तो जब तुम देखो गाड़ी चल रही है, एक स्लोप होता है, गाड़ी ऐसे गिर रही और वो अचानक ही रुक जाता है, क्योंकि जो रोड होता है ना वो घिसता है रोड के ऊपर। ओके और वो जो टायर होता है उसके अंदर जो डिज़ाइन बनी होती है और रोड पे जो खड़बड़ाहट होती है, एक दूसरे से टकराते हैं और वो गाड़ी रुक जाती है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, रोकने वाला फोर्स होता है, स्टॉपिंग फोर्स होता है। ओके वो बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत जगह पे उसको बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे तुमने वो 7th में पढ़ा ही होगा, वो कैरम बोर्ड वाला एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए पाउडर डालते हैं ताकि रोके ना, रुकावट ना आए मेरे कौड़ियों में। ओके लेकिन जो रास्ते होते हैं जहाँ फुटपाथ हो कुछ भी हो गए तो उसमें ज़बरदस्ती उसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स बढ़े, क्योंकि वो स्टॉपिंग फोर्स है तो कोई गिरे नहीं। समझ रहे हो तुम, बारिश में कम हो जाती है देखो फ्रिक्शन फोर्स। ओके तो बेसिकली इट इज स्टॉपिंग फोर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देन बात की गई है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। एक और बात मतलब ये दिख रही है तुमको, ये फोटो अगेन, ये फोटो देख लो, इसमें क्या हो गया, ये फोर्स, ये जो मतलब फोटो में क्या समझाया गया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके तो क्या हो गया कि ये बता रहे हैं तुमको, पता होगी ये दिख रही है तुमको, ये बॉटल है, ये बॉटल है, और ये दिख रही है तुमको ये जो रेड, ये यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये तो पता ही होगा तुमको, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, सेम पोल्स नॉट अट्रैक्ट, जैसे मतलब अपोजिट वो लव वाला, अपोजिट पीपल अट्रैक्ट एंड ऑल। तो ये दिख रहा है तुमको, ये रेड है और ये ब्लू है, तो ये पोल है, एक पोल है,
तो ये जो तुम पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, यहाँ पे अपोजिट ये जो पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल को अगर तुम मतलब वो रखोगे ना, मतलब सामने सामने रखोगे, तो तुम देखोगे कि दोनों अट्रैक्ट होंगे, ओके, पास पास आने लगेंगे। और वही तुम उल्टा घुमा दोगे तो ये दूर दूर जाने लगेंगे। तो बेसिकली दैट प्रिंसिपल ओनली मैग्नेटिक फोर्स का, ओके, तुम कि जो है कि मतलब अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स एंड सेम पोल रिपेल्स, ओके, लाइक पोल्स रिपेल्स। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे तुमको दिखाया गया है। तो ये एक एग्जांपल ये भी है कि इट्स अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं भी हो रहा है तो भी फोर्स काम कर रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुमको ये पिक्चर से बस इतना ही याद रखना है। तो मैं तो बोलती हूँ पूरा चैप्टर में फिर पिक्चर्स याद कर लो, बस हो गया, समझ जाएगा तुमको कि क्या बोलना चाहता है तुम्हारा चैप्टर। फिर ये बैलेंस अनबैलेंस क्या मतलब एकदम मतलब बता रहा है तुमको, बैलेंस ही यूज़ करके बैलेंस फोर्स समझा रहा है। तो ये दिख रहा है तुमको, वो जो तराजू होता है जो दुकान वाले रखते हैं बेसिकली फिश वाले, तो ये देखो यहाँ पे वेट रखा है, वहाँ पे वेट रखा है। तो ये वेट अगर ज़्यादा हो गया तो ये मूव करेगा, वो वेट ज़्यादा हो गया तो मतलब तो इस तरफ मूव करेगा, अगर ये वेट ज़्यादा हो गया तो इस तरफ मूव करेगा। अगर लेकिन दोनों वेट सेम हो गई तो बैलेंस हो जाएगी। तो वही बताया है तुमको कि बैलेंस एंड मतलब अनबैलेंस फोर्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो अभी ये देखो तुमको 3 पॉइंटर्स जो इम्पोर्टेंट है ये बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई करेंगे ना एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में, ओके, तो force equal to their addition will work. Okay, forces are applied on one object in directions opposite to their difference basically. बेसिकली मैं तुमको समझा दूँ इसका मतलब क्या होता है। ये तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो जो पहला पॉइंट था बेसिकली इट्स नथिंग बट दिस। समझो ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं उस पर, ओके, सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो जो टोटल फोर्स इस बॉडी पे काम करेगा टोटल फोर्स विल बी एडिशंस ऑफ दिस 3 फोर्सेस, बिकॉज तीनों एक तरफ लग रहे हैं तो सब जुड़ के जितना होगा टोटल, वो टोटल फोर्स इस बॉडी पे फील होगा। समझ रहे हो? लेकिन समझो यहाँ पे से तुमको कोई यहाँ पे धक्का मार रहा है और कहीं यहाँ पे धक्का मार रहा है, ये बंदा ज़्यादा धक्का लगा रहा है, ये थोड़ा धक्का लगा रहा है। तो जो फोर्स इस बॉडी पे रियली काम करेगा विल बी द डिफरेंस मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो जो बचा हुआ फोर्स रहेगा वही इस बॉडी पे लगेगा। तो इसको देखो F1 माइनस F2 होगा, वही टोटल फोर्स इस पे लगेगा। तो समझ रहे तुम? यहाँ पे तुम्हारी मम्मी धक्का मार रही है, यहाँ पे तुम्हारा बेबी धक्का मार रहा है। तो ये जितना ये मम्मी जो इतना धक्का मार रही है उससे कम ही धक्का मारेगा बेबी, राइट? तुमको जो फोर्स लेकिन महसूस होगा, ओके, विल बी द डिफरेंस। मतलब इसमें से ये हटा दो, जो इसमें से जो ये हटा दिया, मतलब समझो इतना फोर्स माइनस हो गया तो तुम पे सिर्फ इतना ही फोर्स काम करेगा। समझ रहे हो तुम? थर्ड पॉइंट जो बताई गई है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मेंशन किया गया है जो हमने बहुत पढ़ा है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, चलो ब्रश अप करते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसा कुछ भी जिसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, और स्केलर क्वांटिटी समथिंग जिसमें डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट मतलब डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। तो समझ रहे हो तुम कि फोर्स जो है, फोर्स इट्स ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो? नहीं तो वो काम नहीं कर रहा है या फिर उसको कोई वैल्यू नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिस पे वो फोर्स जो वो उसका डायरेक्शन मतलब इतना मायने नहीं रखता है, या फिर उसको डायरेक्शन पता भी लगे तो तुम उसको कुछ बता नहीं सकते, मतलब यू नो अंडरस्टैंडिंग। तो जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट इज लाइक व्हेन एवर यू मेजर फोर्स यू नीड टू सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। सेम विद द प्रेशर, ओके, देर आर लॉट ऑफ क्वांटिटी। लाइक हमने तो सुना ही होगा, मतलब अगर तुमको प्रेशर कर दूँ मैं, मतलब बता दूँ बेसिक डिफरेंस, तो एक होती है स्पीड, ओके, और एक होती है वेलोसिटी। तो तुमको पता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्पीड तो सुना ही होगा तुमने कि स्पीड क्या है बंदे की, स्पीड मतलब कितना डिस्टेंस कर रहा है, कवर कर रहा है कितने टाइम में, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, वो उसकी स्पीड हो गई, ओके। तो वेलोसिटी क्या होती है? वही होती है, डिस्टेंस ही होती है, बट कितने टाइम में। तो डिफरेंस क्या रह गया? ओके, दोनों में डिफरेंस है, ओके, डायरेक्शन का। समझ रहे हो? तो ये जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन दिखी जाती है। तो जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विथ डायरेक्शन। तो जो क्वांटिटी में डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी जो है उसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो भी फोर्स हो गया, ओके,
तो मैंने बोल दिया कि चलो फोर्स कितने का लग रहा है, 6 न्यूटन का लग रहा है। ओके, ये तो याद है, न्यूटन इज़ द यूनिट इन विच वी मेजर फोर्स। ओके, या फिर तुम दूसरा भी यूनिट यूज़ कर सकते हो फोर्स का, इट्स प्रेशर, इट्स लाइक एरिया इंटू प्रेशर, तो बेसिकली इट इज़ केजी पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली जो फोर्स होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना स्ट्रेंथ है। ओके, कितना है, 6 है, 7 है, जो भी नंबर और वो यूनिट आता है, जो भी 6 है, 12 है, उसका मैग्नीट्यूड है। बट उसके साथ में तुमको ये भी देखना होता है कि कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, व्हाटएवर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेजर द फोर्स लाइक दिस। अंडरस्टैंड? वो 3 पॉइंट का मतलब ये हो गया। फिर बाद में तुम्हारे बुक में मेंशन की गई है इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया बेसिकली हमने जो डिस्कस किया है कि अगर कोई चीज़ जो जिस स्टेट में रहती है उसी स्टेट में रहने की उसकी टेंडेंसी होती है। जैसे तुमको बता दिया मैंने, तुम बिस्तर पे सो रहे हो तो तुम चाहते हो मैं बिस्तर पे ही पढ़ा रहा हूँ, या फिर तुम चल रहे हो धीरे धीरे स्कूल की बस की तरफ, तो तुम चाहते हो उसी स्पीड से या डायरेक्शन से मैं चलता रहूँ जब तक कोई बाहर का फोर्स ना आ जाए। बराबर? जो बेसिकली इनर्शिया नथिंग बट इज़ द आलस। ओके, ऐसा ये भी कहते हैं कि जितना मास होता है बॉडी में, मतलब जितना वजन होता है बॉडी का, उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। इसीलिए तुम देखो कि अगर ट्रक जब मूव करती है एक डायरेक्शन में, ओके, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में है ना उसी डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर समझो एक साइकिल है तो उसको रोकना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसकी इनर्शिया कम होती है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है जो सब में देखी जाती है, मतलब सब चीज़ों में, सब मतलब ऑब्जेक्ट्स में, तो वो इनर्शिया होती है। तो बेसिकली हमने वो डिस्कस कर दिया है। तो व्हेन यू रीड अबाउट इट यू डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड दिस इज सेम थिंग विच वाज डिस्कस्ड अब। देन वी टॉक्ड अबाउट द प्रेशर ऑलरेडी, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये डिस्कस किया गया है। हाँ, ये यूनिट ऑफ प्रेशर मतलब डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो मैंने तुमको बता दिया ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है अपना, न्यूटन है। ओके, एरिया उसको मीटर स्क्वायर में हम जज करते हैं। मतलब एरिया को किस में मेजर किया जाता है, टू डायमेंशन। एरिया के लिए हमेशा 2 डायमेंशन याद रखना। एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, और जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। ओके, सो एरिया याद रखोगे, क्या रखोगे याद, कि एरिया ये 2D है और वॉल्यूम ये 3D है। तो एम के यूनिट में जो होता है, लेंथ जो होती है वो किस में, मीटर में मेजर होती है। तो 2D है मतलब 2 मीटर होंगे, इसलिए मीटर स्क्वायर। ओके, 3D है, इसमें 3 मीटर होंगे, इसलिए 3D। तो एम क्यूब। अंडरस्टूड? दैट्स हाउ इट इज। सो अब मैंने बात कर ली, तो ये हो गया। अगर फोर्स की बात की जाए तो देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया हमने, ऊपर देखो, फोर्स और एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा गया है, देखो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इस प्रेशर का यूनिट। ओके, इसको अगर तुमको ये नहीं लिखना है तो तुम ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट पास्कल, क्योंकि प्रेशर का जो फंडा है उस बंदे ने निकाला था, तो इसीलिए। ओके, और एटमॉस्फेरिक साइंस में अगर बोलेंगे तो प्रेशर का यूनिट जो होता है वो बार हो जाता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको हम लोग नॉर्मल यूनिट में नहीं, पास्कल में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसको बार में मेजर किया जाता है। और 1 बार जो होता है ना वो मतलब 1,00,000 गुना ज़्यादा होता है पास्कल से। 1,00,000 मतलब 1 में कितने ज़ीरो हो गए, 5 ज़ीरो। ओके, तो 10⁵ पास्कल। याद रखना, प्रेशर जो हो गया वो स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब डजेंट रियली रिक्वायर योर क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन। ओके, सो अभी वाई इज दैट सो, आई टेल यू एक्चुअली द रीजन इज देयर। ये फोर्स है और ये एरिया है। फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन दोनों के पास डायरेक्शन हो गया, क्योंकि तो डायरेक्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऊपर नीचे है ना, तो कैंसिल कर देंगे तो फिर बचता नहीं कुछ। तो वो क्या बन गया, हमारा जो प्रेशर है वो क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी बन गई। ओके, तो और ये तुमको मैंने बता दिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही डिस्कस किया गया है। ओके, हाँ, बेसिकली दैट ओनली। बॉटम सरफेस हो, कैमल का एग्जाम्पल दिया है कि कैमल का फीट का एरिया ऐसा मतलब थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर वो सैंड में जल्दी घुसेगा नहीं क्योंकि प्रेशर कम पड़ता है।
एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा ना, लाइक दैट यू नो. प्रेशर ऑन सॉलिड्स, pressure on solids not really required. You can see this is the diagram. Okay, so तुम देख रहे हो ये प्रेशर, ये दिख रहा है तुमको, ये लकड़ी रखी हुई है, उसमें बुक रखे हैं 4. ओके, तो ये जो 4 बुकें फैला के रखे गए मतलब एरिया बढ़ गई, और ये जो एक साथ रखे गए मतलब एरिया कम हो गई जिस पे प्रेशर लग रहा है, मतलब फोर्स जिस पे लग रहा है वो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गई. क्योंकि एक छोटे से एरिया पे, देखो ये छोटे से एरिया पे इतना प्रेशर लग रहा है, तो क्या हो गया, ये तुमको वही बता रहा है कि एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम फील होगा. फोर्स मतलब फोर्स क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा फील होगा. तो वही तुमको यहाँ पे बताया गया. फिर ये दूसरे एग्जाम्पल में तुमको प्रेशर ऑफ लिक्विड्स बताई गई है. ये देखो प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या बताई गई, इस एग्जाम्पल से तुम समझ लो कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे जितना तुम गहराई में जाओगे वहाँ पे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. तो समझ रहे हो तुम, ये दिखा, ये फ़ोटो से ये समझ लो कि क्या हो रहा है. ये देखो यहाँ पे 3 होल कर दिए पानी के. ये जो पहला वाला पानी का ड्रॉप निकल रहा है ना, वो बहुत फोर्स से निकलेगा, बहुत प्रेशर से निकलेगा. ये थोड़ा कम प्रेशर से निकलेगा और ये बहुत आराम से, मतलब आराम से निकलेगा. इसका मतलब समझ रहे हो तुम, मैं तुमको इतना रीड करके नहीं बता रही क्योंकि तुम समझ लो कि ये जो तुम्हारी बुक में है ना उसको इजीली कैसे रिवाइज करेंगे, या फिर तुम एक झलक में कैसे समझ सकते हो कि क्या बताया गया है. ओके, तो तुम देख लो ये गैस प्रेशर भी जो है, ओके गैस प्रेशर में जो है, तो इतना समझ जाओ कि ओके, तो ये जो बताया गया है कि बेसिकली इसमें तुमको एक्सपेरिमेंट में समझ गया है कि हाँ, कि जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो जिस कंटेनर में होगा उसमें वो इक्वली हर जगह पे प्रेशर डालता है. समझ रहे हो तुम. ओके, और जैसे जैसे तुम वाटर में जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर कम होते जाएगा, ऊपर जाएगा. तो ओके, तो वैसे ही सेम गैस का प्रेशर होता है. गैस भी अगर तुम भर रहे हो किसी कंटेनर में, वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें क्या होता है भाई, गैस ही होता है ना. तो उसमें भी क्या होता है, वो गैस भी जो होता है वो अपने कंटेनर, मतलब जिसमें उसको रखा गया है, उसके ऊपर जो है इक्वल प्रेशर हर जगह एक्सर्ट करता है. यही बताया गया है. तो समझ रहे हो. ठीक है, अभी बात की गई है आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मतलब अगर तुम सोचोगे तो इसके बारे में कि क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर तुमको अपनी एटमॉस्फेयर, मतलब तुम बैठे हो, अभी नीचे बैठे हो, अगर समझो तुम प्लेन एरिया में रहते हो, ज़्यादा ऊंचे एरिया में नहीं रहते हो, तो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा खासा नॉर्मल होता है, बराबर. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मेजर किया जाता है, बार्स में. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो क्या हो गया कि अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल एरिया में रहते हो, मतलब प्लेन एरिया में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना होता है कि तुम्हारा अंदर का प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाता है. देखो हमारे अंदर भी प्रेशर होते हैं, राइट, ब्लड प्रेशर, लाइक ब्लड प्रेशर, राइट. तो कैसा होता है कि जैसे तुम पहाड़ी एरिया में जाते हो तो नाक से कभी कभी खून आने लगता है, नाक से, कान से, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा अंदर का प्रेशर, वो बाहर के प्रेशर से कम हो जाता है. इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वहाँ पे बहुत ही सफोकेट फील करते हैं. ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, तुमको समझने की ज़रूरत है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इट इज़ द एयर विच सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड्स. ओके, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये जो लेयर ऑफ एयर है जो हमारे अर्थ के अराउंड है, बराबर. लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, अर्थ के मतलब नीचे लेवल से ऊपर जाओगे, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है. ये दिख रहा है तुमको, ये ऊपर ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम होते जाता है, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स है दूर दूर चले जाते हैं. ओके, दैट्स व्हाट इट इज़ रिटन हियर. ये वाला ग्राफ जो है तुम अगर एग्जाम में बनाना चाहो तो इसका मतलब वही होता है. ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये हाइट है, तो ये जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे गिर रहा है, मतलब ऐसे गिर रहा है. तो बेसिकली वही है, उसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताया गया है इस डायग्राम के थ्रू. ओके, और ये देखो ये बैलेंस्ड और ये अनबैलेंस्ड बायोइंट फोर्स. तुमको बताया था मैंने बायोइंट फोर्स क्या होता है. बायोइंट फोर्स क्या होता है, जो ऊपर धकेलता है, जो पानी होती है उसकी टेंडेंसी होती है जो भी चीज़ है उसको ऊपर धकेलने की. ओके, तो एक पानी के अंदर एक फोर्स ऑलरेडी होता है. अगर जो चीज़ उसमें जिसको उसमें डाला गया है ना, अगर समझिए खाली बॉटल है, खाली बॉटल में पानी है नहीं, कुछ है नहीं, मतलब वो खाली है, तो उसके अंदर क्या ही फोर्स होगा, तो पानी उसको आराम से ऊपर धकेल देगी. ये बॉल को भी आराम से ऊपर धकेल देगी. बट ये पानी, ये दिख रही बॉटल जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फोर्स थोड़ा है. जो चीज़ में वेट होता है ना उसमें फोर्स होता है,
तो वो क्या करेगा, पानी उसको धकेल नहीं पा रहा है, इसलिए वो नीचे तक पहुंच पाया। ओके, तो ये दिख रहा है तुमको, ये जो F2 लिखा हुआ है मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स दिखा रहा है वो बायोएंट फोर्स है। और ये जो F1 मतलब ये जो FG दिखा रहा है बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको नीचे खींच रही है, जो उस बॉटल के वजन की वजह से बना है। ओके, तो जो ग्रेविटेशन खींच रही है और ये ऊपर जो डाल रही है G, वो है अपना वाटर का फोर्स है। तो वो जो फोर्स है दोनों अनइक्वल है, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कंपेयर टू द बायोएंट फोर्स, इसलिए वो डूब गई, नहीं तो वो नहीं डूबती। ऐसा इस वाले एक्सपेरिमेंट में या फिर तुमको बताने की कोशिश की गई है। इतना मतलब ज़्यादा लोड नहीं लो मैं दिमाग पे, बस समझ लो कि कंसेप्ट क्या है, क्या फ़ोटो में क्या दिखाई गई है। ओके, और क्या रीज़न है, मोस्टली वैसा ही समझ लो कि मतलब कोई चीज़ तैर गई पानी में मतलब बायोएंट फोर्स जो है वो स्ट्रांग हो गई, अगर नहीं तैर गई मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम कर दिया। समझ रहे हो। फिर बाद में आर्किमिडीज प्रिंसिपल वही बकवास मतलब वही बात कर रहा है कि देखो अगर हवा है तो फिर वो नीचे ही रहेगा, लेकिन बायोएंट फोर्स रहेगा, मतलब पानी डाल दिया तो पानी इसको ऊपर धकेल देगा तो उतने लेवल पे नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो। तो पानी का भी एक फोर्स अपना होता है, उसको बायोएंट फोर्स कहते हैं, और वही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि वॉट एवर वी पुट इन साइड वाटर, ओके, इट विल ट्राई टू पुश इट अप, ओके, एंड द फोर्स विच विल बी मतलब जो फोर्स पानी डालेगा उस ऑब्जेक्ट पे जो उसके अंदर है वो उतना मतलब कितना होगा जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, मतलब जितना वॉल्यूम जो है पानी का उसको हटाया उतना फोर्स उस पर डालेगा। कुछ समझ रहे हो तुम। अभी समझ लो, मैं तुमको बता दूँ और एग्जाम्पल दे दो, मतलब तुमको मैं एग्जाम्पल दे दूँ। चलो सो बेसिकली क्या हो जाता है कि जितना मतलब हाँ ये देखो प्रिंसिपल है, जब एक ऑब्जेक्ट पार्शली या फिर फुल्ली डूब जाता है पानी में, इमर्स्ड हो जाता है, तो एक फोर्स होता है बायोएंसी का जो उस पर काम करेगा ऊपर के डायरेक्शन में। वो फोर्स कितना होगा, जितना वेट होगा फ्लूइड का जो उस ऑब्जेक्ट ने हटाया है, डिस्प्लेस किया है। मतलब ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओके, उसने पानी का एक मतलब एक पार्ट जो है या फिर उतना एक वेट है जो डिस्प्लेस कर दिया, तो उतना ही फोर्स उस पे लगेगा। समझ रहे हो। पूरे पानी का तो नहीं लगेगा ना। अभी समुंदर अगर अपना पूरा फोर्स लगा के तुमको ऊपर ढकेलेगा तो मतलब कोई भी चीज़ डूबेगी ही नहीं, राइट। ऐसा उसका मतलब है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है। फिर आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लोग डरते भी है, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम टेलिंग यू। नंबर्स भूल जाओ, नंबर्स नहीं देखने के न्यूमेरिकल्स में। उसका पहले भाषा समझने का लिखा क्या है। अभी समझ लो क्या लिखा हुआ है। पहले जो एरिया है बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स वो इतना दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। ओके, अभी प्रेशर बोला तुमको कितना है, तो पहले समझ लो कि एरिया दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। वेट का देखो यूनिट देख लो तुम, क्या लिखा हुआ है, न्यूटन। न्यूटन। तो वेट जो होता है याद रखो ना, मास अलग होता है और वेट अलग होता है। मास जो होता है उसका असली क्वांटिटी क्या होता है, मतलब केजीज में रहेगा, ग्राम्स में रहेगा। ओके, मास होता है वो। और जो वेट होता है ना वो फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है वो उसका वेट है। जो तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो वो वेट होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो काम कर रही है उस पर, तभी तो तुम्हारा वेट निकलता है। ओके, तो वो होता है उसका मतलब। तो तुमको समझ गया, ये जो दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, और तुमको बता दिया बस बोला कि प्रेशर ढूंढ लो। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 50, और एरिया कितना दिया हुआ है 0.25। अरे यूनिट भी देखने का हमेशा एम के यूनिट में ही है, देखो मीटर स्क्वायर और न्यूटन है, तो यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस डिवाइड कर दो। तो 50/0.25 ये मीटर है और तुमको डिवाइड करना है। तो तुम कैसे डिवाइड करोगे, अभी ये अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं तुमको दिखा दूँ कैसे डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये तरीका जो है बेसिकली ये मेरा तरीका है, आई डोंट नो व्हाट पीपल यूज़। तो बेसिकली 50 इज़ नथिंग बट 5 × 10, राइट, एंड 0.25। ओके, क्योंकि राइट साइड है तो ये इंटू तो नहीं होगा, ओके, ये डिवाइड में होगा। तो इसका मतलब होता है 25 × 10⁻²। अभी ये तरीका तुमको पता नहीं कैसे होता है, बट मैं तुमको समझा दूँ, ये काफ़ी बेसिक है और तुमको हमेशा न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। तो ये समझ लो क्या होता है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है, मतलब उसके आगे जुड़ी होती है, आगे है ना, तो वो पॉजिटिव है। तो 5 × 100 हो गया इसका मतलब। तो 100 मतलब 5 × 100 हो गया। तो 5 × 100 मतलब कितने ज़ीरो है उसके पास, 2 ज़ीरो है, तो ये 5:2 हो गया, 10⁻² हो गया। बराबर, इंडाइसिस चैप्टर था वही है भाई।
ओके, लेकिन अगर समझो ये 5 जो है उसके 100 नीचे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻²। क्यों ऐसा? क्योंकि 5 जो ऐसा है और ये 100 मतलब होता है 10⁻²। तो ये उसको अगर ऊपर लेना है, मतलब डिवीजन से ऊपर लेना है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो जाती है, बट जो 2 होता है वो -2 हो जाता है। तो इसका भी वही है। तो ये 10 है, मतलब 10⁻1 और 10⁻1 है। ओके, अभी ये क्या हो गया, कैसे कट करेंगे? 5 1 ज़ा 5, दोनों सेम टेबल में आते हैं तो हम कट करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 2, मतलब 25, 5 5 ज़ा 25। और ये जो है ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, ये 10⁻1 था ही और ये ऊपर गया, तो 10⁻2 था, ऊपर गया, उल्टा हो गया ना 2। ओके, अभी 1/5 क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा भाई? ये 1/5 है, तो मैंने इसको चलो 10 बना दिया, मतलब 1 10 ज़ा 10 ही होता है ना। तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया नीचे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, राइट। तो इट बिकेम व्हाट, 2 इंटू 10⁻², राइट। तो अभी क्या हो गया, 10⁻²। तो 10⁻² मतलब पॉइंट के बाद में 2 नंबर चाहिए, तो 2 को भेजा और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो मैंने 0 को भेजा और पॉइंट लगा दिया 0। तो ये बन गया हमारा 0.02। क्या यूनिट था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे करो, नहीं समझ रहा है तो कमेंट डालो, आई ट्राई टू मेक इट सिंपलर व्हेन वी आर डूइंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ओके, अभी जो सेकंड न्यूमेरिकल है बड़ा पिद्दू सा न्यूमेरिकल है, मतलब कैलकुलेशन बड़ी बहुत इजी है। अभी देखो यहाँ पे क्या बात हुई है, रिलेटिव डेंसिटी ढूंढनी है आयन की। छोड़ो रिलेटिव मतलब क्या, आयन का डेंसिटी पानी का डेंसिटी के साथ कंपेयर करके ढूंढना है। ओके, तो जो डेंसिटी है आयन की वो इतनी दी गई है, और अपनी जो वाटर की डेंसिटी है तुमको याद होना चाहिए बाय द वे, 10⁻³ मतलब 1000 kg/m³ होता है। kg/m³ क्यों है ऐसा यूनिट डेंसिटी का? क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। तो मास इस kg में मिलता है और वॉल्यूम हमेशा 3D होता है, तो मीटर³ में मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका डेंसिटी वो हो गया। अभी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला सिंपल है, डेंसिटी आयन का और वाटर का, वो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अभी तुमको दिख गया 10⁻³ 10⁻³ ऊपर नीचे, राइट। 10⁻³ 10⁻³ ऊपर नीचे हो गया कैंसल, क्या बचा 7.85, खत्म। 7.85 तुम देखोगे इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि जब ऐसे डिवाइड होता है तो यूनिट भी कैंसिल होता है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये गया, ये गयो, इतना ही आंसर है। ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट, तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं। फिर बाद में हो गया एरिया ऑफ द टिप। अरे छोड़ो इतना, एरिया देख लो, एरिया दिया हुआ है 0.5 mm³। ओके, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया इज अ 2D थिंग, तो आई एम सॉरी। तो मीटर³ दिया और वेट दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, मतलब न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, फोर्स और एरिया दी हुई है। प्रेशर ढूंढने बोला है, अगेन वेरी सिंपल, तो वेट अपॉन एरिया इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, सेम थिंग। ओके, तो एरिया दी हुई है, फिर दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, क्या दिया हुआ है देखो, एरिया दिया हुआ है 0.5, हाँ मिलीमीटर में। ओके, और वेट दी हुई स्क्रू में वो बराबर है, वेट बराबर है, वो MKS मतलब ऐसा यूनिट में है, बट एरिया जो है वो मिलीमीटर में, विच इज़ नॉट राइट। तो उसको मिलीमीटर को जो होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करना होता है, मीटर में कन्वर्ट करना होता है, मिलीमीटर में नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि हर एक, तुमको वही बोला मैंने, हर जगह पे तुमको ये बहुत श्योर होना है कि तुम ऐसा यूनिट में सारे आंसर्स निकाल रहे हो। ओके, तो अभी मिलीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करो, मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। अभी 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर है। तुमको बता दो, मैं 0.5 ऐसे रहने दो। मिलीमीटर, मिली वर्ड मतलब होता है 1000। ओके, 1000 नहीं होता है वो, मिली नहीं होता है वो किलो होता है, किलो का मतलब होता है 1000, मिली का मतलब होता है -1000। मतलब ये है, बट ये कैसे 1/1000 है, ठीक है। -1000 मतलब क्या होता है, 1/1000, तो उसका क्यूब चाहिए हमको। तो 0.5 ऐसा का वैसा, और ये जो 1/1000 है बेसिकली 10⁻³ हो गया ऊपर, बराबर। तो ये 0.5 और ये 1/3, 2 ज़ा 1, 2 ज़ा 1/2 इज़ 1 ओनली, तो 10⁻³ इंटू दिस, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, तो 10⁻6 हो जाता है। तो हमको नीचे नहीं चाहिए तो ऊपर चाहिए, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6। अब ये जो मिलीमीटर था, ये मिली का बदले तो ये लिख दिया, और मीटर वैसे ही रहेगा, मतलब मीटर वैसे ही रहेगा, तो मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मिलीमीटर से मीटर स्क्वायर में चेंज, राइट। दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। फिर बाद में बोला है उन्होंने कि हमारा ये हो गया एरिया, और ऊपर क्या है, प्रेशर, वेट।
राइट। तो प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया या वेट अपॉन एरिया। तो भी फोर्स कितना दिया है उन्होंने, 0.5 दिया हुआ है न्यूटन, और वे एरिया कितना मिल गया हमको, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। याद रखना यूनिट बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि तुमको भी इजी मतलब समझता है कि मिस्टेक नहीं करते हो तुम। फिर अभी क्या हो गया, ये 0.5 कैंसिल हो गया, बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो ये 1 वैसे ही रहेगा, छोड़ो। ये 10⁻6 -6 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 6, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर वैसे का वैसा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। क्या इजी आंसर क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया, मास दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है। डायमेंशन दी हुई मतलब क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी है, मतलब 3 चीज़ दी गई है, मतलब 3D। वॉल्यूम, मास दी गई है, वॉल्यूम दी गई है। ओके, तो अभी उसको एक टेबल पे रखा है, उसका ये जो भी है नॉनसेंस। तो वो भी बोला है कि किधर मैक्सिमम प्रेशर फील होगा। तो तुमको क्या करना है, देखना है कि प्रेशर ये तीनों सरफेस के ऊपर अलग अलग प्रेशर फील होगी। ओके, जो डायग्राम दी गई है उसमें ये तीनों सरफेस के ऊपर अलग अलग प्रेशर फील होगी। तो हमको तीनों का प्रेशर निकालना है और देखना है कि कहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये ब्लू वाला एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। तो उन्होंने, हाँ, तो लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। तो हम ये ना थोड़ा सा नोटबुक में करते हैं। ओके, तो ये रेक्टेंगल दी गई है और इसमें बोला गया है कि इसकी लेंथ दी हुई है 50। तो लेंथ मतलब सबसे बड़ा वाला साइड, तो ये हो गया, लेंथ हो गई। ओके, फिर उसकी हाइट दी गई है, मतलब ये हाइट। तो ये जो हाइट है वो उसकी गई है 20, और उसकी ब्रेथ जो है वो उसकी ब्रेथ दी गई है 10। तो ये वाला लेंथ की जो बाजू वाला जो होता है वो हमेशा ब्रेथ होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए तुमको बता रही हूँ मैं। तो ये 10 दी गई है, तो 50 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 20 हो गई। तो ये तो 50 हो गया, तो ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। ओके, ये अगर ये ब्रेथ 10 है तो ये ऊपर वाला भी 10 है, ये हाइट 10 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 10 है। राइट, ऐसे समझ लिया करो। अभी एरिया निकालना काफ़ी इजी होगा। क्यों, देखो मैं तुमको बता दूँ। ये जो पहला एरिया है, ये रेक्टेंगल है, सबके सब रेक्टेंगल है, बिकॉज इट्स अ क्यूबॉइड। सो बेसिकली तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसकी 50, ब्रेथ क्या है इसकी 20, ये वाली एरिया सरफेस की। तो 50 इंटू 20 मतलब 5 टू ज़ 10, 5 टू ज़ 10, और बाकी कितने ज़ीरो बच गए, 1 ज़ीरो और 2 ज़ीरो, तो 1 2, तो ये 1000 हो गया इसका एरिया। अभी ये वाला देख लो, ये वाला जो बॉक्स है उसका एरिया क्या होगा, ये 10 है और ये 20 है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 ज़ीरो आगे, तो 200 हो गई इसकी एरिया। ओके, और फिर बाद में ऊपर वाला देख लो, तो 50 इंटू 10 है, तो मतलब 5 1 ज़ा 5 और 2 ज़ीरो आगे 500। तो तुमको समझ रहा है, इसका एरिया 100 है, इसका एरिया 500 है, इसका एरिया 200 है। तो सबसे कम एरिया किधर है, ये वाला एरिया है। तो तुमको एक चीज़ पता है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर उस एरिया में ज़्यादा लगता है जिसमें एरिया कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। राइट, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पे लगेगा। बट कैसा है कि उनको समझता नहीं ऐसा डायरेक्ट, तो वी हैव टू फाइंड प्रेशर फॉर एवरीथिंग। तो ये समझ लो, इसको एरिया 1 दे दिया हमने नाम, इसको मतलब एरिया 1 दे दिया नाम, इसको एरिया 2 नाम दे दिया, और इसको एरिया 3 नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3, तो 3 प्रेशर, अलग अलग तरह के प्रेशर निकलेंगे, तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो ये जो हमको निकला है ना 1000, ये क्या है ना, इस सेंटीमीटर में दिया हुआ था इसलिए 1000 निकला है। तो अभी हम उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर मीटर, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमको छोटे क्वांटिटी को बड़ा बनाना है तो डिवाइड करना पड़ता है, और बड़े क्वांटिटी को छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई, बराबर। मतलब मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 1 का 100 बनेगा, और सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है ये तीनों के तीनों, तो 100 और ये 500, तो सबको क्या करेंगे हम, 5 सबको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 200 को 100 से डिवाइड किया तो 2 बचता है, ये 5 बचेगा और ये 10 बचेगा, बराबर। तो पहला प्रेशर क्या है, 1000 वाला। तो एरिया नीचे ना, तो 1000 क्या हो गया 10, और ये कितना हो गया, ओके ओके, एक मिस्टेक हो गई, समझो ये मीटर है, ये मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर बनाना है तो फिर हमको 100 से डिवाइड करना होगा। बट अगर मीटर स्क्वायर है तो
तो हमको इसको 1000 मतलब और एक ज़ीरो लगेगी, समझ रहे हो तुम? तो और एक ज़ीरो लगेगी तभी तो हमको जो है सबको तीनों को 1000 से डिवाइड करना होगा। तो आंसर कैसा आएगा? अभी समझो तुमने ये 1000 को, सॉरी 1000 से नहीं, 4 बार आएगा, 4 बार, तो 4 बार से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 2 बार आ गया ना, मीटर स्क्वायर है तो एक रहता मीटर तो सिर्फ 100 होता, अभी 2 मीटर हो गए तो मीटर इंटू मीटर तो दैट इज 1000, तो 10⁻⁴। तो तुमको 1000 को 10⁻⁴ मतलब इस 10 मतलब 1000 से डिवाइड करना है। तो ये ज़ीरो गया, 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 बचा ये। तो 10⁻1 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1। ओके, और वैसे ही उसका भी हो जाएगा। 10⁻⁻1 जो होता है वो 0.1 होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को पॉइंट के उस तरफ भेजना पड़ेगा। एक ही ज़ीरो है ना, तो 1 को उस तरफ भेजेंगे तो 0.1 हो गया। वो जो 500 वाला साइड था वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.05। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि 5 वाला जो पॉइंट है मतलब 500 है उसमें, और उसको हमने 4 ज़ीरो से डिवाइड किया, बराबर। तो ये 100 गया, ये ज़ीरो गया, ये गया, ये गया, तो भी क्या हो गया? 5 × 10⁻² हो गया। तो -2 होता है मतलब -2 मतलब 2 ज़ीरो है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 नंबर जाने चाहिए उस तरफ राइट साइड, तो 0.05 हो जाएगा। वैसे ही अभी 200 का देख लेंगे तो सेम हो जाएगा इसी तरीके से 0.02। ये हो गया एरिया जो मीटर स्क्वायर में होगा, ना कि मीटर में। ये मिस्टेक है, मुझसे भी हो गई तो आपसे भी हो सकती है, तो ध्यान देना। तो अभी क्या हो गया? पहला प्रेशर निकालेंगे तो एरिया यहाँ पे 0.1 है, दूसरे वाले में एरिया है 0.05, और तीसरे वाले में एरिया है 0.02, राइट। लेकिन सब में प्रेशर जो है वो सब पहले से ऑलरेडी सब में सेम है, तो 98 98 98। ओके, तो तुम डिवाइड करोगे सबको तो तुमको आंसर मिल जाएगा। ओके, इसका मिल जाएगा तुमको 980, क्योंकि ये 10⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, तो एक ज़ीरो बस लग जाएगा आगे। ये 5 है, उससे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 9060, और ये ऑब्वियसली लास्ट वाला है 490 100 पास्कल हो जाएगा। ओके, तो इसमें कुछ डाउट है तो तुम बता दो, मैं वापस से बना दूँगी इसको। फिर बाद में एक एग्ज़ाम लास्ट वाला जो है वो बहुत ही इजी है। उसमें क्या दिया हुआ है? एक पीस ऑफ मार्बल है जिसका वेट दिया हुआ है 100 ग्राम। तो ग्राम आते ही तुम भाई समझ लो कि उसको चेंज करना है, तो 100 ग्राम, तो 100 ग्राम जो होता है वो कितना केजी होता है? 10⁻³ मतलब ग्राम को अगर हमको केजी बनानी है तो उसको माइनस मतलब डिवाइड करना होता है। और उसकी डेंसिटी दी हुई है, तो जो डेंसिटी दी हुई है वो है 2.5 G/cc। इसको भी चेंज करना है एक्चुअली। अगर दोनों के दोनों मतलब ये भी ग्राम में दी हुई है और ये भी CGS मतलब कौन सा यूनिट है? ये CGS यूनिट में दोनों दिया हुआ है, तो हमको एक्चुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली डू इट, यू नो। तो वेट डेंसिटी दी हुई है तो तुमको क्या ढूंढने बोला है? उसका क्या बोला है? वेट ढूंढने बोला है। वेट इज़ नथिंग बट ए फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जो चीज़ बनी है उसी से ढूंढ लो। ओके, ये जो तुमको ये जो वेट दिया गया है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ग्राम है इसकी यूनिट, ये इसका मास है, इसका वेट नहीं है। जो वेट की बात कर रहे हैं ना ये हम, ओके, तो जो वेट है जो सच में हमको ढूंढनी है वो क्या होगी? फोर्स होगी। तो डेंसिटी और वेट का क्या रिलेशन है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला है कि मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। तो डेंसिटी दी हुई है तो मास दी हुई है, बस वॉल्यूम निकालनी, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले हम। तो मास अपॉन डेंसिटी, तो ये डिवाइड कर लो 100/2.5, तो 100/2.5 दिखा तो 40 cc बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो अभी ये वॉल्यूम हो गया, तो अभी इसमें क्या हो गया? अगर ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम
इसका है, तो उसका वेट कितना होगा, वेट मतलब कितना फोर्स इस पे पानी में काम करेगा। तो इसका जो वॉल्यूम असली मतलब वेट था वो 100 था, ओके, लेकिन इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया रहेगा, 40 ग्राम। तो ये जो पानी है मतलब ये जो वेट है उसका 100 ग्राम, ये हवे में है, तो इतना प्रेशर ये नीचे की तरफ डालेगा, लेकिन जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही पानी उस पर प्रेशर डालेगा, बराबर। तो वॉल्यूम जो होगा इस बेसिकली उतना प्रेशर उसके ऊपर ऊपर लगेगा। तो इसके ऊपर टोटल कितना वेट काम करेगा, वेट कितना होगा उसका पानी में, उसका याद रखना। ये देखो ना अपोजिट फोर्स में काम कर रहे हैं तो उसका डिफरेंस होता है, तो ये दोनों जो है माइनस करेंगे, तो इतना इसके ऊपर काम करेगा, इसका वेट हो जाएगा 60 ग्राम। दैट्स इट गाइस, I hope something you learned from this chapter. I hope to see some good comments. Yes, like, subscribe, comment.